Hello all. Hello. Welcome to the Wellness Camp, which is organized by SBY Academy, presented by CFBP. We would like to thank our partners, our title partner, Phillip Capital, our radio partner, Radio City, our digital partner, It's Mumbai, and our associate partner, Kashi Wellness. So we have a stress management expert over here, Dr. Sukhmit, who will help us and guide us and tell us how to manage the stress. So over to you, Dr. Sukhmit. Hey, Bhushan, thank you so much. Am I audible well? Yeah, you are audible. Okay, wonderful. Thank you so much. First of all, a very warm thank you to SBY Academy and especially Yukti for having me on board for the stress management session and for having the trust in all of us, and joining you in this wonderful initiative. Thank you so much. Heartfelt gratitude to the entire team. Thank you so much. Very much. All right. So without wasting a single moment, let's get going. Why do we have this session today? Kyunki aise duniya mein, at least, so I'm a doctor, and in my entire experience of 21 years, मुझे तो आज तक कोई नहीं मिला जिनको ये दुनिया में जिनको stress नहीं हो. Oh wow, I can see so many participants. Can I get a show of hands कि यहाँ पर कोई भी है जिसे कोई stress ना हो? Anybody? You can please let's have a wonderful interaction. It'll keep us all awake during this hour, and I promise by the end of the session you will go leaving all your emotional stressors and baggages right there. So yes, wonderful. So ऐसा तो कोई नहीं है जिसको कोई स्ट्रेस ही ना हो. आज तो छोटे से बच्चे को भी ऐसे कहते हैं वो इसको बहुत स्ट्रेस है, पढ़ाई का स्ट्रेस है, ऑनलाइन स्कूल का स्ट्रेस है. So starting from a small kid to the most elderly person, all of us do go to some or the other stressors in life. However, how everybody deals with it is different. सबके लिए जो कैसे deal करता है उसके लिए वो अलग है. Otherwise, all of us, yes, definitely go through some or the other stresses. So I want to now begin with a wonderful and a very small activity. Give me a second while I share. All right. One more. Just give me a second. All right. So we start with this wonderful activity wherein what I want you to do is, I want you to see this small picture, this image, and all right. Okay. See, this technical glitch is proving that stress to kabhi bhi aa sakta hai, isn't it? Why is it not sharing? All right. Okay. Yes. All right. I want you to see this picture and now tell me, what do you actually feel about it? Yeah, here you go. All right. So this picture refuses to come on screen. All right. कोई बात नहीं. अक्सर हम जब स्ट्रेसफुल होते हैं, okay,
Like today morning, what happened? आज मेरी पासपोर्ट ऑफिस में अपॉइंटमेंट थी और मुझे यही चिंता थी कि क्या मैं सेशन के लिए टाइम पे पहुंचूंगी, लेट तो नहीं हो जाऊंगी, ये पासपोर्ट ऑफिस में ज्यादा टाइम तो नहीं लग जाएगा. सो दिस इज लाइक एब्सोल्युटली नॉर्मल, इजंट इट? एंड अक्सर लाइफ में हमारे लाइफ में बहुत सारी सिचुएशंस ऐसे आती ही है, इजंट इट? सो व्हाट हम उसके साथ डील कैसे करते हैं वो बहुत जरूरी है. ये स्ट्रेस होता ही क्या है. एंड वंस वी हैव दिस थिंग इन प्लेस, 1 second, अंजना, फोटो दिखानी थी मुझे आपको और वो दिख नहीं रही है. एनीवेज, नो वरीज. सो वी स्टार्ट विद हमारे जीवन के जो अलग अलग पहलू होते हैं, ठीक है, हम उससे स्टार्ट करते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है ऑफ कोर्स. एंड वन मोमेंट. ओके, सो वी स्टार्ट विद दिस वंडरफुल एक्टिविटी ऑफ द व्हील ऑफ लाइफ. ये क्या है? ये हमारे जीवन के अलग अलग पहलू हैं और I want you to now quickly grab a pen and a paper, and I want you to see the entire wheel. You draw a wheel of life with the different spokes, and as many spokes as you feel. All the stresses that you have on your mind, जो भी आपके mind पे जो भी आपकी परेशानियां हैं या जो भी चीजें आपकी yeah, just 1 second, I think. The technical glitch है. Just give me 1 second, guys. I'm so extremely sorry. ये दिखा नहीं रहा है. I'm so sorry. Just give me 1 minute. I will just settle this technical glitch. Showing all this while. So कुछ चीजें हमारे कंट्रोल में नहीं होती हैं, right? ऐसे ही लाइफ हमें सिखाती है कि how to be prepared. और ये प्रेपरेशन हम कैसे करते हैं? ये प्रेपरेशन हम करते हैं रेजिलिएंट बनके. हम खुद को तैयार रखते हैं, isn't it? जैसे एक क्रिकेट का बॉल होता है ना, वो क्रिकेट का बॉल या कोई भी रबर बॉल जिसे हम पटकते हैं, you know, so जब हम उसे पटकते हैं, जब हम उसे पटकते हैं तो क्या होता है? वो बाउंस बैक होता है, राइट? और जब जब हम उसे धीरे से नीचे से पटकते हैं तो वो नीचे तक थोड़ा सा बाउंस होता है, और जब हम उसे ऊपर से पटकते हैं तो वो और जोर से बाउंस होता है. दिस इज एग्जैक्टली व्हाट लाइफ कीप्स डूइंग विद अस, इजंट इट? और हमारी ड्यूटी यही है कि बस हम थोड़ा सा yes, Christina, this was supposed to be in Hindi, but yes, I will definitely have a lot in English as well. And I also have a session in English which will help you a great deal at 7 o'clock. Okay, so I will definitely see to it that, you know, I translate in between. What we'll do is we'll talk in English, which is Hindi and English, so that for convenience of everybody. Yes, so where was I? I was at this life हमें पटकती रहती है, isn't it? और हमारी ड्यूटी क्या है? हमारी ड्यूटी यही है कि हम जितनी बार हमें लाइफ ऐसे झटके देगी उतना हम रेडी रहते हैं अपने आप को बाउंस बैक करने के लिए. बट वो एक दिन में नहीं होता है, माय डियर फ्रेंड्स. वो एक दिन में बिल्कुल नहीं होता. उसे जैसे हमें जिम के लिए ट्रेनिंग करनी होती है, हमें अपना मसल बिल्डअप करना होता है ना, एक दिन में हम 50 kgs या 100 kgs नहीं उठा सकते, isn't it? So वैसे ही हमें तैयारी रखनी होती है. ओके, एंड जस्ट अ मिनट व्हाइल आई. हाँ, सो वो तैयारी हम कैसे करते हैं? हम अपने आप को ऐसे सेशंस अटेंड करके हमें तैयार रहना होता है. A minute while I just okay, so what I want you to now draw a wheel on your papers, and उसके जितने spokes हैं वो हम
जितने स्पोक्स आप बनाना चाहते हैं, एनीथिंग दैट इज रियली यू नो बॉदरिंग यू, तो वो हम उतने स्पोक्स बनाएंगे। आपके सबसे इंपॉर्टेंट लाइफ की पहलू कौन से हैं? आपके लाइफ के सबसे पहलू कौन से इंपॉर्टेंट है, वो हम वन मोमेंट, हाँ, सो योर फिजिकल हेल्थ, ओके, योर फाइनेंशियल condition as of now, your personal life, your professional life, your career, okay? Just give me 1 second. Now I think I've got that. I'm just trying to share. Just give me a second. Okay. Okay, yeah, here you go. Now I have it in place. So see, this technical glitch, I'm so sorry for that. But nevertheless, all's well that ends well. So we have it right here. Let's begin with this. So see, until yesterday, मुझे ये पिक्चर एकदम स्टिल लग रही थी, और आज मुझे ये घूमती हुई नजर आ रही है, ओके? एंड मैं चाहती हूँ आप खुद सब ये पिक्चर देखें, ये इमेज को देखो, और आपको क्या दिख रहा है? क्या ये छोटा वाला बॉल घूम रहा है? क्या ये टाइमर वाला स्ट्रक्चर जो है वो घूमता हुआ नजर आ रहा है? क्या एग्जैक्टली आपको नजर में आ रहा है? ओके? और कल तक जब तक हमारी टीम हम सारे डिस्कस कर रहे थे आज का जो प्लानिंग है या जो भी, तब हमने ये जब पिक्चर देखी तब हमें कुछ ऐसे हिलता हुआ नहीं नजर आया. इनफैक्ट वी वर वंडरिंग कि यार हमको क्यों नजर नहीं आ रहा, बिकॉज वी वर एब्सोल्युटली रिलैक्स्ड. But today, you know, because of this technical glitch, I was feeling worried. Oh God, I hope I'm able to do justice to this, and you know, I hope I'm able to. मैं उनको ये पिक्चर दिखाना चाहती थी, और मैं उनको फुल ऑन एंजॉय करवाना चाहती थी सेशन, ताकि वो अपने सारे स्ट्रेसेस भूल के पूरी लाइफ, यू नो, दे हैव, उनके पास सारे वो टूल्स और टेक्निक्स होंगे ताकि वो आगे अपनी लाइफ अच्छे से डील कर पाए. सो आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू, आप ये देखिए ये पिक्चर को आप कैसे घूमता हुआ नजर आ रहे हैं. आपको ये क्लॉकवाइज घूमता हुआ दिख रहा है, या एंटी क्लॉकवाइज घूमता हुआ दिख रहा है, या स्लो घूम रहा है एकदम धीरे से, या फिर बहुत जोर जोर से घूम रहा है? कैन यू प्लीज पुट ऑन द चैट विंडो गाइज, प्लीज? I would love to see your responses. Let me see few answers, which gives me more energy to talk. Wonderful, nice. Yes. Let's have it all on the chat window. Yes, slow, fast. Oh, wonderful. Oh, for somebody it's not moving at all. Oh, wonderful. That's wonderful. That means you are absolutely okay, moving slow. Lovely. So exactly. तो क्या ये okay, not moving, Rajpala, wonderful. So that means you are pretty calm and relaxed. Devendra ji, wonderful. Slow. So क्या इसका मतलब ये है, जिनके लिए ये मूव हो रही है उनके लिए उनका मतलब क्या है कि क्या ये बहुत सीरियस बात है कि ओ माय गॉड अब मैं इतनी स्ट्रेस्ड हूँ, अब मैं क्या करूंगी? ओके, दीपा के लिए भी इट्स नॉट मूविंग, क्रिस्टीना इट्स नॉट मूविंग फॉर यू ईदर, दुर्गा जी it's showing that it's moving slow. इसका तात्पर्य क्या है? इसका इंटरप्रिटेशन क्या है? क्या हम इतने स्ट्रेस है कि अब हमारा क्या होगा? Is that and that will give you more stress? But नहीं my dear friends, ये एक अलार्म जैसा है, ताकि, और प्लस हम स्ट्रेस मैनेजमेंट के सेशन में आए हैं तो कुछ तो लेकर जाएंगे ना, तो हम वो लेकर आए हैं कि हाँ हम थोड़ा सा तो स्ट्रेस लेकर जाएं, ताकि हम जाएं तो हमें पता चल जाए कि यू नो ये स्ट्रेस मैनेजमेंट सेशन बहुत ही बढ़िया था, इतना टेक्निकल ग्लिचेस हुआ तो भी हमने बहुत बढ़िया सेशन अटेंड किया और बहुत अच्छे से वो सेशन चला, ताकि हमारा पूरा स्ट्रेस निकल गया. That is exactly, this is the alarm, this was the alarm कि आप अभी काम होने के लिए तैयार हो. ठीक है, वंडरफुल. लेट्स मूव ऑन. अब हमारे लिए बहुत, जैसे कि मैंने पहले भी बताया, आई होप ऑल ऑफ यू हैव, आप सभी के पास एक पेन और पेपर है. So quickly, if you don't have, quickly grab it. And what I want you to do is, आप एक ऐसे, जैसे ये हमारे जीवन का एक चक्र है जिसमें हम अलग अलग पहलू, जिंदगी के अलग अलग पहलू की बात करेंगे. ठीक है? So मैं चाहती हूँ कि आप अपने पेपर पे एक गोल सर्कल बनाइए, and
वेरी गुड। ऐसे का एक व्हील बनाइए और उसके स्पोक्स बनाइए, उसके जो पॉइंटर्स बनाइए, और उसके साथ आप देखिए कि आपको कौन सी चीजें आपकी लाइफ में ज्यादा इंपॉर्टेंट है। खुद की हेल्थ, होम, फाइनेंस, कम्युनिटी, दुनिया, घर वाले, पैशन, करियर, लर्निंग, पर्सनल डेवलपमेंट, इन सब में से आपके लिए कितनी और क्या इंपॉर्टेंट है। और आप चाहें तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ आपकी लाइफ में इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट या और ज्यादा इंपॉर्टेंट कोई चीज है, तो आप प्लीज उसमें और भी ऐड कर सकते हैं। ओके एंड ऐसा नहीं है कि आज हमने ये किया, ऑफ कोर्स हमारे पास बहुत ज्यादा टाइम भी नहीं है, ये जितना हम इस सेशन में हम आपको बता सकेंगे एंड विल शेयर विद ईच अदर, वी विल डू आवर बेस्ट। बट इसके बाद भी ऐसा नहीं है कि ये आज खत्म यहीं पे हो जाता है। इसके बाद भी मैं जानती हूँ और मैं चाहती हूँ कि आप इसके बारे में और डीप भी सोचें, ठीक है, और ये भी सोचें कि क्या इसमें मुझे और काम करने की जरूरत है, क्या मुझे इसमें थोड़ा और डिटेल में सोचने की जरूरत है, ये 5 मिनट में मैंने शायद कुछ घाई तो नहीं कर ली। तो ये सब सवाल होंगे, बट दिस इज लाइक अ टेस्टर, ये है, हम एक टेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो आप चाहे तो इसके बाद आप ध्यान से, मैं चाहूंगी, आई नो दैट ऑल मोस्ट ऑफ यू विल वांट टू डू इट। अब मैं चाहती हूँ कि बहुत लोग, आप लोग करना चाहेंगे ये बात में। तो ये कितनी चीजें हैं, कौन सी चीजें हैं आपकी लाइफ में, यू नो, कि ये आपको एक फीलर दे देगा कि क्या है जो आप अचीव करना चाहते हैं। ओके और इन सब में, आप इन सब के बाजू में मैं चाहती हूँ आप एक अपना गोल लिखिए कि आपका गोल क्या है। हर एक इन एस्पेक्ट्स में आपका गोल क्या है, और आप उसमें किस हद तक सक्सेसफुल है, किस हद तक आप वो गोल पूरा कर पा रहे हैं, ठीक है। वो अपने आप को ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 10 आप पॉइंट्स दे सकते हैं। ओके और उसको पूरा, आई वॉन्ट यू टू शेड इट, इफ यू कैन प्लीज शेड इट, शेड करिए, उसे कलर कर दीजिए, ताकि आप उसमें आपको एक अंदाजा आए कि इस पहलू पे मेरा ये गोल है। मैक्सिमम गोल विल कम एट 10 एंड जब हम उसको सोच रहे हैं उसके बारे में, तब हमें एग्जैक्टली अवेयरनेस आएगा, आइडिया आएगा कि हम इस पहलू पे हमने कितना काम किया है और हमने कितने एफर्ट्स डाले हैं। ओके सो उस पे आप इस तरीके से टेक अ मिनट, ओके 1 मिनट लीजिए और ध्यान से हर एक ये पहलू पे आप अपने सोचिए कि आपका गोल क्या था और आपने कितने एफर्ट्स, कितना टाइम उस पे दे रहे हैं, ठीक है। जैसे ही आपका हो जाता है, please put yes or please put done in the chat window so that I know that you're done and we can move on. अब जबकि आपने ये कर लिया है, ठीक है, I want you to sit back and reflect. आप एकदम ध्यान दीजिए उस पे कि हम कहाँ, मैंने अपने गोल्स के हिसाब से कितना फुलफिल किया है और कितना मुझे और करना चाहिए, कितना मुझे उसमें ध्यान देने की जरूरत है। हो सकता है आप किसी पहलू पे आप ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, उधर से ध्यान थोड़ा सा हटा के आपको कहीं और ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। सो आई वॉन्ट यू टू सिट, एक आप बैठकर, और ये और कोई नहीं कर पाएगा, ये आपकी जिंदगी है, आपकी लाइफ है, एंड दिस यू आर द ओनली पर्सन हु कैन डू इट एंड हु विल डू इट द बेस्ट। ओके सो आप ये करिए और देन यू विल गेट एन आइडिया, आपको ये आइडिया आ जाएगा कि जीवन के चक्र में आपके ये गोल्स कहाँ फिट हो रहे हैं, कितना आप उसमें सक्सेसफुल हुए हैं, ठीक है, फिट हो रहे हैं, और कितना बैलेंस बाकी है, कितना हमें पूरा करना है उसको अच्छे से फुलफिलमेंट के लिए, कितना हमें, ताकि आपकी जीवन की आपको लगे कि हाँ एकदम पूर्ति हो रही है, हमारी फुल ऑन जीवन जी रहे हैं हम,
माय डियर दोस्तों, हमें जिंदगी काटनी नहीं है ना, हमें जिंदगी जीनी है। तो उस जीने के लिए, और एक ही बार मिली है जिंदगी, ना मिलेगी दोबारा, तो उस एक बार जो हमें ये लाइफ मिली है, लेट्स लिव इट टू द फुलेस्ट। हमें उसे पूरी तरीके से जीना है, राइट? सो दीज आर द थिंग्स आपको जिस पे ध्यान देना है। एंड माइंड यू माय डियर फ्रेंड्स, ये एक एक्टिविटी इस तरीके की है जिससे हम बहुत ही अच्छे लेवल के लोगों से, मतलब हाई लेवल के लोगों से भी करते हैं, प्रोफेशनली हाई आई मीन, एंड कोई भी लेवल, इनफैक्ट कोई भी लेवल, ताकि आपको ये अवेयरनेस आए कि आप कहाँ हैं और आप एक कहाँ जाना है और कितनी मेहनत किस एस्पेक्ट में करनी है। ओके? और इसी तरीके से आप जब ध्यान देते हैं तो आप अपने आप को ये प्रश्न पूछेंगे कि मैंने क्या पाया है, मैंने कितना पाया है, और क्या मैं जितना भी मैंने किया है, जो मेरे गोल्स हैं उसके हिसाब से क्या मैं खुश हूँ, क्या मैंने जितना सोचा था उतना पाया है। और ये गोल्स हैं, ठीक है, कौन तय करेगा कि मैं सक्सेसफुल हूं या नहीं हूं? कौन है, किसको मैंने ये पावर दिया? क्या ये दुनिया डिसाइड करेगी या मैं डिसाइड करूंगी कि मैंने जो पाया है वो जो मैंने सोचा था वो मैंने पा लिया है? ओके, सो सक्सेस का मीनिंग मेरे लिए क्या है, मैंने अपने लाइफ के लिए। दोस्तों, हर एक इंसान को अलग अलग चीजें चाहिए होती है ना दुनिया में। किसी को फिनेंशियल तरीके से मटीरियलिस्टिक चीजें चाहिए होती है, किसी को गाड़ी बंगला, किसी को पैसा, किसी को शोहरत, किसी को नाम, किसी को अवार्ड्स, हर एक कोई कहेगा मेरे पास माँ है, राइट? सो हर एक इंसान को अलग अलग चीजों की चाह होती है जिंदगी में। मैं आपको यही सवाल पूछना चाहती हूँ, और आप अपने आप से इनफैक्ट ये सवाल पूछिए कि मेरे जीवन का मेरे लिए महत्व क्या है? व्हाट इज द मीनिंग? मेरे लाइफ की मीनिंग क्या है? व्हाट इज योर बिगर पर्पस? क्या है वो एकदम जो हायर पर्पस है जिसके लिए हम जिंदा हैं? हमारी जिंदगी में 2 इंपॉर्टेंट डेज होते हैं माय डियर फ्रेंड्स। कौन से है वो फ्रेंड्स दोस्तों? कैन यू गेस? कम ऑन, लेट मी सी अ शो ऑफ आंसर्स ऑन द चैट विंडो। दुनिया के कौन से ये 2 इंपॉर्टेंट दिन होते हैं जिंदगी के? कम ऑन, आई वांट दीज आंसर्स, आई वुड लव टू हैव दीज आंसर्स ऑन द चैट विंडो। दुनिया के सबसे इंपॉर्टेंट डेज कौन से होते हैं अकॉर्डिंग टू यू? एंड इट्स ओके, यू आर एब्सोल्युटली राइट टू व्हाटएवर यू आंसर, इजंट इट? क्योंकि ये आपका नजरिया है, आपका पर्सपेक्टिव है। आपके लिए खुशी के मायने क्या है? या व्हाट गिव्स यू वंडरफुल फीलिंग? बर्थ एंड डेथ। सो डेथ का तो हम कुछ नहीं कर सकते, है ना? यस, वंडरफुल, व्हेन वी आर born in this world. Thank you Kinjal, thank you Rajbara ji, thank you Anjana ji, wonderful. So some more answers, come on. Yes, you're going wonderful, you're such a wonderful audience my dear friends. So I will tell you, दुनिया में 2 important days होते हैं। एक of course मेरा happy birthday, I mean जिस दिन हम पैदा हुए, और दूसरा दिन जो और भी ज्यादा important दिन होता है, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण दिन होता है, वो क्या है? वो दिन होता है जिस दिन हमें पता चल जाए कि हम इस दुनिया में आए क्यों हैं। What is our purpose? हमारे जीने का महत्व क्या है, हमारे जीने का मकसद क्या है? Okay, so that is again a very most important feeling that you, and a thing that you really need to ponder upon. सोचना है हमें, ठीक है, कि वो हम पैदा तो हो गए, हम क्यों पैदा हुए, जिस दिन वो पता चल गया, that will be a wonderful insight and enlightenment for you guys. Okay, और जब हम इंट्रोस्पेक्ट कर रहे हैं तो हमें ये सोचना है कि ठीक है मैंने इतना कुछ पा लिया, पर क्या मैं अंदर से खुश हूँ? क्या ये जो भी मैंने पाया है, क्या ये मुझे उस तरीके का फुलफिलमेंट, जो एक संतुष्टि दे रही है, सेटिस्फैक्शन मिल रहा है क्या मुझे इन सब चीजों से? व्हाट इज इट? क्या है, और वो क्या चीज है जो मुझे एक्चुअल खुशी देगी? जब तक वो क्लैरिटी नहीं है ना दोस्तों, तब तक हम ये रैट रेस हम भागते रहेंगे, जैसे एक जैसे एक how do we let, okay, yes Diksha, we will definitely cater to that. And also my dear friends, I would love to have a lot of question answers in the question answer tab, so that I don't want to miss your chat, I don't want to miss your messages or questions on the chat. हम question answers जरूर लेंगे last में, and so let's
all contribute to this and make it more interactive the way you are doing. I'm so grateful to you. You guys are really rocking. Okay, so what does success mean to you? Okay, so अगर हम एक सक्सेस को एक सीढ़ी की तरह देखें, ठीक है, तो हम चल रहे हैं, ठीक है, और हमें तैयार रहना चाहिए ये सीढ़ी पे. कभी अगर लिफ्ट काम नहीं कर रही हो तो सीढ़ी से जाना पड़ता है ना, तो सीढ़ी पे चढ़ने के लिए तैयार है. और जब हम सक्सेस की लैडर पे चढ़ रहे हैं, सीढ़ी पर चढ़ रहे हैं, तो हमारे लिए क्या मायने रखता है कि हम कहाँ तक पहुंचे, हम कितना और बाकी है, या कितनी दूर आ गए हैं, या हमारे नीचे कौन है, और क्या हम उनसे घृणा से देख रहे हैं, या सहानुभूति है, या हमें जो हमसे आगे है हम उनको ही रोल मॉडल मान के आगे जा रहे हैं. क्या है वो हमारी सक्सेस का मीनिंग हमारे लिए, वो बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है. एंड हमें ये तैयारी रखनी है कि बस हमें आगे जाना है. ऑफ कोर्स एज आई सेड, नीचे उतरना तो बहुत इजी है. इट्स यू कैन जस्ट स्लाइड डाउन, हम झुक करके नीचे आ सकते हैं, लेकिन ऊपर चलना इज अ लिटिल हार्ड वर्क. सो आर यू रेडी फॉर दैट हार्ड वर्क? या और अगर हम सीढ़ी के बीच में हैं तो बस हम कंफर्टेबल हो जाते हैं कि यार ठीक है, अब आ गए ना, इधर तक तो आ गए, राइट, आगे भी चल ही जाएंगे. तो ये सोचते हैं, तब हम ढीले पड़ जाते हैं, हम कंफर्टेबल हो जाते हैं उस जोन में. और ब्रेन है ना हमारा, वो सबसे बड़ा हैकर है. जैसे हम कंफर्टेबल हो गए, वो हमें एक प्रोटेक्टिव जोन में रख देता है, वो हमें एक सुरक्षा केंद्र बना देता है हमारे आसपास, और उससे हमें उससे बाहर जाने ही नहीं देता है, राइट. बट इफ यू हैव द करेज, यू विल स्टेप आउट. आप में अगर हिम्मत है तो आप उस कंफर्टेबल जोन, जो हमारा कंफर्ट जोन है, जो हमारा वो सुरक्षा का केंद्र है, उससे बाहर निकलोगे तो सक्सेस इज ऑल योर्स. सक्सेस आपके कदम चूमेगी, सफलता सिर्फ और सिर्फ आपको मिलेगी, जरूर मिलेगी. ओके, तो ये मौका है कि आप रिफ्लेक्ट करिए अपने लाइफ पे, अपने जीवन के पहलू पे, अपने जीवन चक्र पे, कि हम कहाँ हैं और हमें कहाँ जाना है. एंड व्हाइल यू डू दिस, जब आप ये कर रहे हैं, आई वांट यू टू थिंक कि आज आपकी लाइफ में, मन में ऐसी कौन सी चीजें हैं जो आपको अभी बॉदर कर रही है. व्हाट आर द थिंग्स इन योर लाइफ दैट दोज आर बॉदरिंग यू. ठीक है, टेक अ मिनट एंड राइट इट ऑल डाउन. आपके पेन और पेपर पे जरूर तुरंत ये लिख दीजिए, ताकि हमें हमारा माइंड, जो हमारे माइंड पे बॉदर कर रहा है, हमारी सारी चीजें जो हमारे माइंड पे हैं, उसे हम, जब हमारा कबर्ड भर जाता है, हम क्या करते हैं, उसको क्लियर कर देते हैं ना, पुरानी चीजें निकाल के फेंक देते हैं. वैसे ही हमारे माइंड को डीक्लटर करना है. तो ऑल द थिंग्स ऑन योर माइंड, जो भी आपके मन पे, दिमाग में जो भी चीजें हैं, जो पता है क्या है वो चीजें, कुछ फ्यूचर के बारे में एंजाइटी, हाँ मेरा बेटा 10th में, मेरा बेटा 12th में, मेरा उसका क्या होगा, उसकी कहाँ एडमिशन होगी, या मुझे यहाँ जाना था, अब मैं लेट पहुंचूंगी, या मुझसे ये नहीं होगा, whatever. इट कुड बी द सिंपलेस्ट ऑफ थिंग. ठीक है, कि मेरा कुरियर आने वाला था, वो नहीं आया. इट कुड बी एज सिंपल एज दैट. एनीथिंग, जस्ट पुट इट डाउन ऑन पेपर सो दैट योर माइंड इज फ्री. एंड लेट मी टेल यू माय डियर फ्रेंड्स, कि अगर आप पेपर पे लिख देते हैं तो हमारा माइंड खाली रहता है, और जब माइंड में वो स्पेस आ जाती है तो हम और क्रिएटिव चीजें सोच सकते हैं, और आगे बढ़ने की आइडियाज हमारे मन में आते हैं, राइट. सो टेक अ मिनट एंड राइट डाउन ऑल द थिंग्स दैट आर बॉदरिंग यू, जो भी आपको बॉदर कर रही हैं अभी इस वक्त लाइफ में आपकी. प्लीज राइट इट डाउन. क्या है वो अननोन, अनकही, अनदेखी चीजें जो हमें परेशान कर रही है. दैट अनसर्टेनिटी. आज तो पैंडेमिक ने हमें सिखा दिया और हमें दिखा भी दिया कि लाइफ इज सो अनसर्टेन, राइट. अगर ये हो गया तो, अगर वो हो गया तो, ये अगर मगर मगरमच्छ की तरह हमें दबोच लेता है, isn't it? और उससे भी ज्यादा जरूरी क्या होता है आजकल, हमारी आधी जिंदगी तो बस ये सोचने में निकल जाती है ना, लोग क्या कहेंगे, व्हाट विल पीपल थिंक ऑफ मी. या तो लेट मी टेल यू, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना. अगर हम ये भी हम सोचेंगे तो वो बेचारे क्या सोचेंगे. सो माय डियर फ्रेंड्स, इसे कहते हैं रिमोट. अपने लाइफ का रिमोट अपने हाथ में लेना है हमें. ओके, एंड ये कैसे होगा, जब हमें पता चलेगा. अब आपकी लिस्ट तैयार होगी आई एम श्योर. और इसमें कितनी चीजें लिखी है आपने, कैन आई गेट इट ऑन द चैट विंडो. कितनी चीजें लिखी है आपने आपके पेपर में? 2, 5, 10, 15,
25, 50. How many things have you written down on your paper? Wonderful. Super, super, super. Very good. I'm sure you have a long list because you're ready and you are absolutely prepared to get rid of all of them, isn't it? So now I will tell you कि हम कहाँ से ऑपरेट कर रहे हैं, हम वो जो अगर मगर है वो कहाँ से आ रहे हैं हमारे, ठीक है? What is this? ये हमारे जो लाइफ के 3 सर्कल्स होते हैं जहां से हम ऑपरेट कर रहे हैं एक्चुअली, जो हमारे रिमोट कंट्रोल होते हैं लाइफ के, ठीक है? एक है सर्कल ऑफ कंट्रोल. आपको ये सोचना है ये जो सारी लिस्ट है आपने लिखी है ये किस में फिट होती है, ठीक है? इनमें से सारी चीजों में से आपको ये सोचना है कि इसमें से मेरे कंट्रोल में क्या है, क्या मैं इसे कुछ बदल सकती हूँ, क्या मैं इसे कुछ चेंज कर सकती हूँ या चेंज कर सकता हूँ. यू हैव टू थिंक कि ये मेरे कंट्रोल में है, क्या मुझे किसी और का बिहेवियर है तो वो हम इसे कंट्रोल नहीं कर सकते, राइट दोस्तों? सो हमें वही चीजों पे ध्यान देना है जो हमारे वश में है, जो हमारे कंट्रोल में, और हम उसे बदल सकते हैं. अक्सर हम उन चीजों के बारे में चिंता करते हैं जो हमारे कंट्रोल में ही नहीं है. लेट मी टेक एन एग्जांपल. चलो कोरोना का एग्जांपल, अभी वो एकदम हाइट सिचुएशन है हमारी पैंडेमिक की. तो इसमें होता क्या है, अब कोरोना वायरस तो मेरे हाथ में है नहीं, राइट? इट्स नॉट इन माय कंट्रोल, करेक्ट? मेरे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन मेरे कंट्रोल में क्या है? प्रिकॉशंस लेना, अपना ध्यान रखना, बिना बात के बाहर नहीं जाना, राइट? सो दैट इज इन माय हैंड और मुझे उतना करना है. दैट इज माय चॉइस. ओके, दैट इज इन माय कंट्रोल. ठीक है? नाउ सेकेंड और अन इम्पॉर्टेंट वन, इन्फ्लुएंस. ठीक है, ये अगर मैं चाहती हूँ कि कोई चीज मेरे हिसाब से हो, हाँ, तो क्या मेरे में उतनी क्षमता है कि मैं उसे इन्फ्लुएंस कर सकूं, मैं उनसे वो चीज करवा सकूं? और वो कैसे हो सकता है? वो हो सकता है, ऑफ कोर्स हो सकता है, वेरी वेल. बट कैसे हो सकता है? क्या मेरे पास उतनी अथॉरिटी है? वन. क्या मेरे कम्युनिकेशन से, मेरे बात करने के तरीके से क्या मैं आपको वो काम करने पे कन्विंस कर सकती हूँ या मना सकती हूँ? सो एम आई एबल कि वो इन्फ्लुएंस करने की क्षमता मुझ में है, तो मैं वो सारी चीजें इस दायरे में आएंगे, इस सर्कल में आएंगे. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द सर्कल ऑफ कंसर्न. यही है हमारे जीवन का पूरा कंट्रोल. तो कंसर्न में वो इनफैक्ट 100 में से मुझे लगता है 98-99% लोग इसी दायरे में आते हैं. क्यों? क्योंकि ये हमें चॉइस नहीं देता. ये हमारे मन में जो भी विचार आते रहते हैं, इट कुड बी whether it is out of our influence, whether it is out of our control, या वो हमारे वश में ही नहीं है और ना हम उसका कुछ कर सकते हैं, करेक्ट? सो वो हमारे सर्किल ऑफ कंसर्न में आता है. ओके, एंड सो हमें यही सोचना है कि आप अभी 1 मिनट और लेंगे और आपकी जो लिस्ट है उसमें हमें ये देखना है कि इन तीनों में से किसमें आपकी वो जो चीजें आपने लिखी है आपकी लिस्ट में, ये किन सर्कल्स में आ रही है और हम क्या कर सकते हैं उसका. ओके, टेक अ मोमेंट एंड डू दैट. Please put a done on the chat window so that I know and you are ready. Once you are ready, I can move on. और जैसे ही हमारे ये होता है, हम अब एक वंडरफुल एक्टिविटी भी करेंगे. All right. Yes. Let's move on. I'm sure आपने अभी तक आप जान गए होंगे कि हमारा कंट्रोल कहाँ है और हम उसका क्या कर सकते हैं. Okay? Wonderful, my dear friends. I just love the way you guys are doing. You guys are rocking, honestly. बहुत सारी सिचुएशंस हमारे कंट्रोल में नहीं होती है ना डियर? सो
What can we do about it? Such situations हमारे कंट्रोल में कभी भी नहीं होती है, लेकिन हमारा जो उस पर रिएक्शन होता है या रिस्पॉन्स होता है वो हमारे कंट्रोल में जरूर होती है. किसी ने कुछ कह दिया, वो तो कह के चले गए, लेकिन हम सारी रात उसके बारे में सोचते रहे. तो जब हम उसे अपने आप पे हावी होने देते हैं, वो हमारी चॉइस है. हम चाहे तो उसे वहीं पे स्टॉप कर सकते हैं, isn't it? Those the thinking is in our hands, is in our control. हम उसका हर्ट फील, हमें ऑफ कोर्स दुख तो होगा, कोई भी अगर किसी ने हमें कुछ कह दिया तो, लेकिन हम उसको किस लेवल पे हमारी लाइफ पे इन्फ्लुएंस करने दे रहे हैं. ओके, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, सो अवेयरनेस बस चॉइस गिव्स यू द कंट्रोल. जब हमें पता चल जाता है कि ओके दिस इज हैपनिंग विद अस, ये तब आता है दोस्तों जब हमें हमारे इमोशंस को हम कंट्रोल करते हैं और ना कि हमारे इमोशंस हमें कंट्रोल करते हैं. ऐसा होना ही नहीं चाहिए. जैसे कि मैं आपको वो बॉल का एग्जांपल दिया था, जिंदगी तो पटकती रहेगी, लेकिन हमें बाउंस बैक करना है, वो हमारी जिम्मेदारी है. ऑलराइट, सो ऑलराइट, लेट मी कंटिन्यू. सो और ये होता क्यों है, हमारा कारण क्या है? अक्सर हमारी जो भी हमारे लाइफ में स्ट्रेसेस होते हैं, उसका कारण क्या होता है कि हम दो चीजें होती है. एक तो हमारा देखने का नजरिया, और कोई और बताएगा दूसरा कॉज क्या हो सकता है? मतलब वो स्ट्रेसफुल चीज इतनी थी नहीं, राइट? लेकिन हमने उसे अपने ऊपर ले लिया, हमने उसे अपने ऊपर हावी होने दे दिया और हमारी रात की नींद खो गई, चैन खो गया, हम पूरा दिन परेशान हैं. तो वो हमने उसे कैसे ले लिया, दैट इज ऑफ कोर्स दैट इज वन ऑफ द मेन रीजंस, राइट? आप बताइए दूसरा, एनीबडी, एनी गेसेस? एक तो है ऑफ कोर्स देखने का नजरिया उस स्ट्रेस की तरफ, और दूसरा, कम ऑन. वंडरफुल. ओके, सो यस, देखने का नजरिया बहुत जरूरी है दोस्तों, बहुत, राइट? क्योंकि अगर मैंने रेड चश्मा पहना है तो मुझे तो सब रेड ही दिखेगा ना, और वो रेड चश्मा नहीं, वो मेरे देखने का नजरिया है, माय परसेप्शन टुवर्ड्स थिंग्स. ओके, सो वो जब तक मैं उतार के साइड पे नहीं रखूंगी, मुझे दुनिया एज इट इज नहीं दिखेगी. मुझे दुनिया जैसे मैं चाहती हूँ वैसे दिखेगी, या जैसे मैं, जो मेरा प्रोग्राम माइंड में फिट है उसके हिसाब से दुनिया दिखेगी, राइट? विच मे और मे नॉट बी ट्रू. वो मेरे देखने का नजरिया है, और जब बदलती है नजरें तो बदलता है नजरिया दोस्तों. सो जैसे जितनी नजरें उतना नजरिया. तो मेरा नजरिया हो सकता है, मेरा जो मैप मैंने बनाया है दुनिया का, माई मॉडल ऑफ द वर्ल्ड दैट आई हैव क्रिएटेड फॉर माई सेल्फ, मेरे दुनिया का नक्शा आपके दुनिया के नक्शे से अलग होगा, isn't it? So एक तो है देखने का तरीका, देखने का नजरिया, perception about the world, about the stress, about anything that is happening to us in our lives, ठीक है? और दूसरा, हम इसीलिए स्ट्रेस होते हैं क्योंकि हमें लगता है हमें वो क्षमता ही नहीं है वो कुछ उससे डील करने की. और ये कहाँ से पैदा होता है? क्योंकि एक बार या दो बार कभी लाइफ में ऐसा हुआ होगा कि हम सक्सेसफुल नहीं हुए, और फिर जो बाकी सब दुनिया में है, या फिर हम खुद ही, बहुत हद तक तो हम खुद रिस्पॉन्सिबल होते हैं. जो हमारा जो खुद से जो वार्तालाप होती है ना, जो डिस्कशन होता है, जो डायलॉग होता है, जो हम खुद से बात करते हैं. सो जैसे हम कहते हैं दो टाइप की कम्युनिकेशन होती है. एक जो हम, जैसे हम और आप कर रहे हैं, कम्युनिकेशन विद अदर्स, और दूसरी और सबसे इम्पोर्टेंट कम्युनिकेशन वो होती है जो हम खुद से करते हैं दोस्तों. और वो सबसे इंपॉर्टेंट है. दैट इज एग्जैक्टली जो हमारा पूरा प्रोग्राम बनाती है, अंदर जो प्रोग्राम फिट होता है. तो वो एक बार फोल्डर तैयार हो गया और अगर उसमें वायरस घुस गया तो वो करप्ट कर देता है ना पूरी प्रोग्रामिंग को. सो वो जो इनर डायलॉग है ना, make sure that is a highly positive and a productive one and a very very empowering, जो आपको पावरफुल और पावर और पॉजिटिविटी देती है, ऐसी वाली वो लैंग्वेज होनी चाहिए हम खुद से बात करते हैं. ओके, नेक्स्ट. ओके, बट लाइफ में होता क्या? अब ये सब ठीक है, सुन लिया, बहुत अच्छा लगा सुन के, मजा आया, बट लाइफ में होता क्या है? अक्सर लाइफ में ये होता है कि हम स्ट्रेस ना बनाया जाता है,
ना नष्ट किया जा सकता है, राइट? इट इज नॉट क्रिएटेड समवेयर कि हाँ चलो ये एक लोकेशन है, यहाँ पे बहुत ज्यादा अच्छे लेवल पे स्ट्रेस मैन्युफैक्चर हुआ है, ऐसे तो होता नहीं है। और ना नष्ट करने की उसकी कोई जगह है, बस वो एक जगह से दूसरी जगह अपना लोकेशन ढूंढ लेते हैं, राइट? और होता क्या है, ये एनर्जी ब्लॉक होती रहती है, ओके? ये ब्लॉक होती है और वो हमें वो पावर देती है टू रिएक्ट और टू रिस्पॉन्ड, ओके? एंड आई गिव यू अ वंडरफुल एग्जांपल। रिएक्शन कैसा होता है, वो सोच समझ के नहीं होता है, वो एकदम अब्रप्ट होता है, तुरंत होता है, बिना सोचे समझे होता है। लेकिन जो रिस्पॉन्स होता है वो हमें बहुत ही सोच समझ के हम जो रिस्पॉन्ड करते हैं वो वैसा होता है, ओके? एंड सो आई गिव यू एन एग्जांपल। एक हम सभी ने सोडा या पेप्सी या थम्स अप ये सब पिया होगा, ओके? गिव मी अ थम्स अप और गिव मी से यस on the chat. Come on. Soda water, everybody has had soda water or Pepsi or thumbs up or any of the aerated drinks. Wonderful, wonderful, wonderful. Very nice. Okay, so सोडा वाटर को हमने बचपन में सभी ने ये किया होगा, आई एम श्योर। हम सोडा वाटर को ऐसे हिला रहे हैं, समझो मेरे हाथ में एक सोडा बॉटल है और एक मिनरल वाटर बॉटल है, ठीक है? और मैंने उसको बहुत हिलाया, बहुत हिलाया, बहुत हिलाया, और मैंने उसका ढक्कन खोल दिया, तो क्या होगा? कम ऑन गाइस, गिव मी रिप्लाई ऑन द चैट विंडो। क्या होगा, क्या होगा जब भी हमने उसको सोडा वाटर को बहुत जोर जोर से हिलाया और ढक्कन? सभी ने किया, कम ऑन, डोंट लाई। हम सभी ने बचपन में ये तो किया होगा। इट कम्स आउट, इजंट इट, बिकॉज ऑफ द गैस। सो प्रेशर बढ़ गया और वो ढक्कन खोला तो वो उड़ गया, इजंट इट? एंड अब मेरे दूसरे हाथ में है मिनरल वाटर, यस, विल स्पिल, वंडरफुल। सो दूसरे हाथ में है मिनरल वाटर, इसको भी मैंने उतना ही हिलाया 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 और फिर मैंने उसका ढक्कन खोला। क्या होगा? What will happen? कुछ नहीं होगा। एब्सोल्युटली राइट, वंडरफुल। ये है मिनरल वाटर और ये है सोडा वाटर। मैंने दोनों को इक्वल प्रेशर दिया, ठीक है, लेकिन ये बाहर आ गया, स्पिल हो गया, और ये इसको कुछ नहीं हुआ। क्यों? ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, आई एम गोइंग टू गिव यू वन मास्टर टिप। सो इट इज द नेचर ऑफ द लिक्विड इनसाइड दीज बॉटल्स। जो ये बॉटल के अंदर है उसका जो नेचर है, उसकी वजह से ये सोडा था इसलिए ये बाहर आ गया, ये पानी था इसलिए इसको हर एक सिचुएशन में वो तो काम ही रहने वाला है, शांत। इसका नेचर नहीं बदलेगा, राइट? सो इट इज द नेचर ऑफ द प्रोग्रामिंग इनसाइड। जो हमारा अंदर, जो अंदर है वही बाहर आएगा ना, माय डियर फ्रेंड्स। सो मेक श्योर कि हमारे जो कंटेंट जो हमारे अंदर है वो हमें एकदम पॉजिटिव और शांत और काम रखना है, okay? Whenever you're in a stressful situation, ask yourself whether you want to react, like उसको पॉपअप आता है ना व्हाट्सएप का, वैसे हमें वो पॉपअप आ जाना चाहिए कि रिएक्शन करना है, सोडा वाटर बनना है, या रिस्पॉन्स करना है, मिनरल वाटर बनना है, ओके? Yes, so now what we do is we'll do one wonderful activity, okay? So okay, now let me explain to you. हमें एक बहुत बढ़िया, आई एम श्योर ऑल ऑफ यू आर रेडी विद योर so come on, are you ready? Are you excited for this wonderful activity? Come on, put it on the chat. Yes, say yes or say me. Who's excited? Come on, who's excited for this activity? Me? I'm very excited. Lovely. Come on, come on, come on. Wonderful. Yes. Yes, Dimple, definitely. Yes, Kinjal, come on. Wonderful. So now listen very carefully. So I will ask you to draw something, और ड्राइंग सुन के टेंशन मत आ जाइएगा, इतनी कुछ हाई फाई ड्राइंग नहीं है, ग्रेट ड्राइंग नहीं है, वेरी सिंपल। आई मे आस्क यू टू ड्रॉ सम ज्योमेट्रिकल फिगर्स, ओके? सो हमें फॉर एग्जांपल मैंने आपको कुछ बोल दिया कि ड्रॉ करिए, और द ओनली थिंग इज, एंड आई विल आल्सो ड्रॉ सॉरी पुट अ टाइमर अलोंग विद इट, ओके? एंड वन मोमेंट, या सो हमें क्या करना है, हमें वो ज्योमेट्रिकल फिगर जो भी मैं कहूंगी वो ड्रॉ करना है, और साथ साथ में काउंट भी करना है। और मैं आपके लिए स्क्रीन पे टाइमर लगाऊंगी, जितने ड्रॉ कर सकते हैं करिएगा, ओके? कम ऑन, बी रेडी, बट यू हैव टू काउंट अलोंग विथ वट एवर यूर ड्रॉइंग, ओके? और जैसे ही मैं आपको बताऊंगी क्या ड्रॉ करना है, आपका टाइमर स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है? ऑलराइट, one moment.
All right. So now you will start drawing as many squares on your paper. Okay. And your timer starts now. Stop. And now I want to know how many squares have you done? Please put it on the chat window. It's going to be, I'm sure you guys are rocking, man. I know you would have done a lot. Come on. Let me see a show of numbers. How many could you do? Wow, 62. That's a wonderful number, Raj Balaji. Super Dimple, 50. Come on. Awesome. 50. Yes, 60. Come on. How many more? Superb. Again, 50, 60, 62, 65, 59. Awesome. Oh, that's wonderful. 64. Superb. 59. 55. 40. 72. Awesome. Superb. Now, what does that mean? We'll wait. अब part 2 इसी पे खत्म नहीं करना है. What we'll do is we'll have another part to it. पर इसमें थोड़ा सा twist है. अब क्या करेंगे हम वही एक्टिविटी करेंगे, ठीक है, लेकिन हम इस पर टाइमर नहीं लगाएंगे, ठीक है. There will be, you will not see the timer. टाइमर में लगाऊंगे, आपको नहीं दिखेगा, ठीक है. And let's see what happens. And एक है कि इस बार हम आपको एक टारगेट देंगे कि you have to do at least 30 more squares than you did earlier. So जिसने 60 किया वो 90, at least 90. You can do much more. Okay. Come on, I will tell you to start. And okay. 1, 2, 3, start. Yes, wonderful. Wow, I'm sure you guys are too good. You must be doing wonderful. And stop. Stop. Wonderful. Now, अब मुझे नहीं जानना है कि आपने कितने किए, ठीक है, लेकिन मुझे ये जरूर जानना है कि अब क्या डिफरेंस था पहले एक्टिविटी की और हमने अभी एक्टिविटी की. What was the difference? क्या डिफरेंस था दोस्तों? How was it different than the previous one?
Wonderful. Your responses give me a lot of energy. It just pumps all the energy in me to respond. Practice. Superb. Yes, practice, practice, practice. Okay. You could draw more. Wonderful. What else? Yes, yes. You were prepared. Okay. It was much more faster. Very good. So what made it different? What was it that made it different? Why could you do it faster? You got practice. Yes. क्या था वो? क्या different था अभी आप में? What was different? New techniques learned. Very good. और अभी आदत हो गई थी तो हमने अच्छा कर लिया. पहले आप फोकस नहीं थे, अब आपको टेंशन नहीं था. ओके, वेरी गुड. नो स्ट्रेस, नो फोकस, नो टेक्निक. ओके, देयर वाज नो टाइमर. वेरी गुड. देयर वाज ओके, बट देन देयर वाज अ टारगेट, राइट? तो भी आपको स्ट्रेस नहीं हुआ. No timeline in the mind. Wonderful. Repetition tha. Okay. Wonderful, wonderful. Thank you so much, guys. I can't thank you enough. You know, you guys are rocking. You know, wonderful. So, ये अक्सर ऐसा ही होता है लाइफ में, isn't it? जरूरी नहीं है कि स्ट्रेस हमें हमेशा टारगेट्स होते हैं, टाइमलाइंस होती है, ये चीजें हमें स्ट्रेस, और हम स्ट्रेस होते हैं तो हमसे काम कम होता है, हम उतना प्रोडक्टिव नहीं हो पाते, राइट? लेकिन जब हम कामली करते हैं, अब टाइमर नहीं था, हमें टेंशन नहीं था, तो हम आराम से कर रहे थे, लेकिन हम ज्यादा फोकस से कर रहे थे. ओके, सो दैट इज एग्जैक्टली व्हाट इज द डिफरेंस. ठीक है, सो यही हमें इट पुट्स अस टू थॉट, इजंट इट, कि स्ट्रेस हमेशा बुरा होता है क्या? एनीबडी, इज देयर एनी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन ऑन दिस, कि क्या स्ट्रेस हमेशा बुरा ही होता है या कभी गुड भी होता है? Anybody? Yes. जैसे हम उसे परसीव करते हैं. Good also. Wonderful. Yes, absolutely right. Applaud to you. So, जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था, आज मेरा कहीं पे अपॉइंटमेंट था पासपोर्ट ऑफिस में, मुझे वहां जाना था, तो मुझे टेंशन थी कि मैं टाइम पे आऊंगी कि नहीं. सो उस टेंशन, उस स्ट्रेस के लिए वजह से मैंने हर चीज पहले शुरू की ताकि मैं टाइम पे खत्म करूं और मैं टाइम पे आकर सेशन ले सकूं विदाउट एनी हैसल्स. ओके, सो व्हाट इज दिस थिंग? ये जो इतना स्ट्रेस होता है जो परफॉर्मेंस के पहले, यस, समटाइम्स इट इज गुड एंड हेल्प्स अस achieve our target and plan better. Wonderful, wonderful. Yes, beyond the lines Mumbai. Wonderful. So ये जो stress जो हमें, this causes us to perform better, जो हमें हर चीज टाइम पे, पंक्चुअलिटी से परफॉर्मेंस बेटर होती है. जैसे कि अगर हमारे क्रिकेट मैचेस नहीं होते तो हमारे बेचारे क्रिकेटर तो they would land up playing only gully cricket, isn't it? वैसे ही एग्जाम्स नहीं होते तो क्या हम पढ़ते थे? शायद नहीं, शायद हाँ. ओके, सो दैट इज एग्जैक्टली, वो उतना लेवल ऑफ स्ट्रेस हमारे लिए जरूरी है ताकि हम अच्छा परफॉर्म करें, ताकि हम आगे बढ़े, राइट? दिस हेल्प्स अस इन आवर परफॉर्मेंस. Yes, let's move on. Dimple has to say something. Sometimes it is good to help us learn from difficult times. Absolutely. और ये difficult times ही हमें actually चीजें सिखाते हैं, Dimple जी. Wonderful. So, yes, we are done with this wonderful activity. And so stress is good and bad. जब हम उसे अपने आप पे हावी होने देते हैं, हम अपने दिलो दिमाग पे छा जाने देते हैं, हमारे बाकी सब अंदर और बाहर पूरे इकोसिस्टम हमारा बिगाड़ देता है, अंदर का भी और बाहर का भी. अंदर कैसे होता है? जैसे कि हमें क्या है, स्ट्रेस हमारे सब ऑर्गन्स को अफेक्ट करता है, हमें क्या क्या सिम्टम्स एक्सपीरियंस होते हैं, ये हम काफी हद तक इमेजिन, हमारा एकदम विच पार्ट ऑफ योर बॉडी फील्स द स्ट्रेस. सो क्या हमें पता चलता है कि हमारा कौन सा पार्ट है जो परेशान है, जो स्ट्रेस्ड है. किसी को पैल्पिटेशंस, दिल की धड़कन तेज हो जाती है, किसी को पसीना आने लग जाता है, किसी को बार बार यूरिनेट करने का मन करता है, किसी को एंजाइटी हो जाती है, परेशानी हो जाती है, नींद नहीं आती है, राइट? किसी को बहुत अक्सर हम स्कूल में देखते हैं ना कि एग्जाम्स आते नहीं और सब किसी को बार बार वॉशरूम जाना पड़ता है, डायरिया हो जाता है, राइट? इंडाइजेशन हो जाती है. आई सी अ लॉट ऑफ पीपल. एज अ डॉक्टर मेरी बहुत क्लाइंटेल बढ़ जाता है जब ये एग्जाम्स आने लगते हैं.
हेडेक, यस एब्सोल्युटली, वेरी ट्रू. सो बहुत सारे सिम्टम्स आते हैं, डाइजेशन नहीं होता है. ओके, और ये कुछ होते शॉर्ट टर्म सिम्टम्स जो जैसे ही स्ट्रेस खत्म हुआ खत्म हो जाते हैं, लेकिन कुछ बहुत लंबे अरसे तक अगर हमने स्ट्रेस कंटिन्यू किया तो ये हमारे मेजर ऑर्गन्स को, ऐसे जैसे ये हमारे सारे मेजर ऑर्गन्स आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं, ये सारे ऑर्गन्स को अफेक्ट करता है. ओके, यस. सो फिजिकल सिम्टम्स क्या होते हैं, जैसे अभी अगर बहुत स्ट्रेस में बात करूंगी तो मेरा मुंह सूख जाएगा, मुझसे बात नहीं करनी होगी. ओके, एंड मेरे हाथ पैर ठंडे हो जाएंगे, हाथ पैर शायद शिवरिंग भी होगी, एंड पसीना ज्यादा होगा, एसी चालू होगा तो भी मेरा पसीना टपक रहा होगा, दिल की धड़कन तेज हो जाएगी, मेरी सांस फूलने लगेगी, या मसल्स, पूरे मसल्स मेरे इतने टेंस्ड हो जाएंगे कि आई विल जस्ट फील द स्ट्रेस, आई विल फील इट इन ऑल माय मसल्स ऑफ द बॉडी. या और जब एग्जाम्स होती है, जब हमें किधर इंटरव्यू देना होता है, तो वो पेट में जो वो गुड़ गुड़ होता है ना, दैट बटरफ्लाइज इन द स्टमक, तो हम कहते हैं ना यार बहुत, आई कैन फील दोस pangs, those butterflies in my stomach. That is actually what stress causes to us. So there is one question from Swati. Yes, Swati, my fun. Okay. Yes, Swati, I will definitely get back to you on this. Okay. One moment. Yes, I have to stop this. One moment. Okay. हाँ. Yes. So what are the physical, जैसे हम लॉन्ग टर्म अगर हम स्ट्रेस लेते ही रहेंगे तो क्या होगा, हमारी नींद, हमें नींद नहीं आएगी, हमारे खाना पीना, भूख प्यास सब मिट जाती है, सेक्सुअल डिसऑर्डर्स हो जाते हैं. मतलब बहुत से कपल्स मेरे पास आते हैं कि यू नो द वाइफ और द हस्बैंड, इच्छा ही नहीं होती है उनको, या बहुत पूरी बॉडी में एक होता है, किसी किसी को पोस्ट डिलीवरी वो सिम्टम्स रह गए तो रह ही गए, और फिर उनको लगता है कि यार क्या करेंगे, हम कैसे निकलेंगे, कभी मेरा ध्यान नहीं रखा गया तो अब कैसे होगा. ऑफ कोर्स इट इज ऑल वेरी वेल टेकन केयर ऑफ अगर हम प्रॉपर्ली हम स्ट्रेस से डील कर लेते हैं. And of course we've spoken about all this. So what can I do with the stress that I have, right? एक बहुत ही बढ़िया स्ट्रैटेजी, ABC स्ट्रैटेजी मैं आज आपको देना चाहती हूँ. अवेयरनेस कैसे आती है, जब हमें पता चले कि यार क्या है वो एक्चुअली हमें चीज, जब और अवेयरनेस आने से हम अपने इमोशंस पे और हमारे स्ट्रेस पे कंट्रोल कर सकते हैं. द रिमोट कंट्रोल ऑफ लाइफ कम्स इन आवर हैंड, जो हमारे जिंदगी की लगाम हमारे हाथ में आ जाती है, राइट? बैलेंस, हम एक एक करके इसको देखते हैं. ओके, अवेयरनेस में क्या होता है, there are wonderful 4 A's which I can help you with. You know, avoid, can you ask yourself, can you avoid this? किसी से बहस करना है जो हमें स्ट्रेस होता है, क्या हम उसे अवॉइड कर सकते हैं ना? कुछ लोग अवॉइड करना नहीं चाहते क्योंकि उनको लगता है कि अवॉइड कर लिया तो मतलब वो सामने वाला मुझे बहुत वीक समझेगा, बट इट्स नॉट दैट. You avoid it to get stress yourself, or I avoid arguments not because I'm a weak person, but I avoid it because मुझे मेरी peace of mind बहुत प्यारी है. I don't want to waste my energies arguing people for you know silly stuff. Okay, alter, क्या मैं इसे alter कर सकती हूँ, क्या मैं मेरा देखने का नजरिया बदल सकती हूँ, क्या मैं कुछ और तरीका अपना सकती हूँ इस पर्सन से डील करने का. So what is it that I can alter? Ask yourself all these questions, right? Adapt, क्या मैं इसे adjust कर सकती हूँ, मुझे पता है ये इंसान तो होने वाला है, so why not just go my way and continue my work. Okay, और कुछ नहीं काम कर रहा है तो पता है कि भाई ये ऐसा ही है, जस्ट एक्सेप्ट इट. व्हेन यू अनकंडीशनली एक्सेप्ट, हमें तकलीफ कब होती है, जब हमारे मन में एक ब्लूप्रिंट होती है. ओके, और जो हमें मिलता है, जो हमारी सिचुएशन होती है लाइफ में, जो हमारी सिचुएशन होती है लाइफ में, वो ब्लूप्रिंट मैच नहीं होती है, ब्लूप्रिंट से मैच नहीं होती है, तब हमें तकलीफें होती है. ओके, नाउ नेक्स्ट, बैलेंस बिटवीन द हार्ट एंड द माइंड, इजंट इट? सो बैलेंस क्या होता है? बैलेंस ये होता है कि हम अक्सर करते क्या है, हमें कोई बीमारी होती है. ओके, सो आई एम अ डायबिटिक, आई एम अ हाइपरटेंसिव, आई एम, मतलब हमने मान रखा है कि यही मेरी आइडेंटिटी है. डोंट आइडेंटिफाई विद द डिजीज माय डियर फ्रेंड्स, हमें उससे अपनी सच्चाई मान के नहीं बैठना है. आई एम सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज नाउ, और I'm experiencing a headache now. मेरे एक बहुत सीनियर मेंटर थे, unfortunately he is no more. Okay, and he was a wonderful person. उनसे अगर हमने पूछा, he was unwell, और हमने उनसे एक बार पूछा, हॉस्पिटल में गए थे हमने मिलने, तो हमने उनसे कहा कि सर आप बहुत, how's your health, आप ठीक नहीं है ना? You know what he replied? He said, my body feels unwell.
और हमें तभी समझ में नहीं आया कि ये बॉडी फील करने मतलब खुद की बॉडी है ना, तो हम ऐसे क्यों कह रहे हैं. बट नाउ आई फील द डिफरेंस कि आई एम ओके बट माई बॉडी इज एक्सपीरियंसिंग दिस. और जब हम ऐसे करते हैं तो हमें पता है कि अब एक्सपीरियंस हो रहा है, मतलब ये एंड भी होने वाला है. वी नो कि वो ING डाल देते हैं ना हम जब, तो पता है कि अब हो रहा है, अब ये खत्म भी होने वाला है. Okay, so this is what you have to do. And last was control, right? A, B, C, awareness, balance and control. Control कैसे ला सकते हैं हम जिंदगी में? Control के लिए बहुत बढ़िया 3 simple steps है. Hyper oxygenation, ये क्या होता है? At least 1 week में हमें 2-3 बार, कम से कम 2-3 बार ऐसी एक्टिविटी करनी चाहिए, डांस और जॉगिंग और रनिंग, whatever gives you. हम हाफने लग जाए, ऐसी हालत पे आ जाना, ऐसी वाली एक्टिविटी एटलीस्ट हफ्ते में 2-3 बार करनी. क्या होता है उससे? हमारा ब्रेन जितनी भी ऑक्सीजन एक्स्ट्रा हम हमारे ब्रेन को चाहिए वो पुल करता है और वो पूरे बॉडी में हमारे लंग्स को देता है. एंड इन एवरीथिंग व्हेन ऑक्सीजन इज रशिंग थ्रू आउट योर बॉडी, it makes you feel amazing. And there is it also has an added benefit. जब भी हम stressed होते हैं, जब हम physical activity करते हैं, now as a doctor, the doctor in me has popped up, तो stress level का hormones जो होता है, stress hormones का level तुरंत नीचे आ जाता है. Okay, so it's a wonderful strategy to combat stress, my dear friends. लर्निंग, अब मैंने जैसे कहा था कि स्ट्रेस क्रिएट और डिस्ट्रॉय तो होता नहीं है, ना बनाया जाता है ना नष्ट होता है. तो होता क्या है, वो हमारी बॉडी में वो ब्लॉक होता रहता है. एंड अगर हम उसको चैनलाइज नहीं करें, हम नवी नवी चीजें नहीं सीखे, तो वो ब्लॉक ही रहता है और वो कहीं ना कहीं फिर हमारे ऑर्गन्स को अफेक्ट करने लगता है. सो यू रादर गिव इट हम अगर उसको रास्ता देते हैं निकलने का, तो वो बेटर रहता है. चैनलाइज कर दिया हमने उसको, एक डाइवर्जन बना दिया है, तो वो ही रास्ता पकड़ेगा ना वो. लेकिन अगर हमने डाइवर्जन नहीं बनाया और वहीं पे ब्लॉक हो गया, then it will start affecting our organs, my dear friends. पर ये होता कैसे है? So कैसे करना है? अभी जैसे कि I want all of you to quickly do one just 5-second activity. I want you to just fold your hands and sit. Just fold your hands, ठीक है? Quickly, right? And I want you to note करिए कौन सा हाथ ऊपर है और कौन सा हाथ नीचे. For me, it's my right hand which is over the left arm, and the left hand is inside, lower down. ठीक है? वापस खोलिए, वापस करिए, वापस खोलिए, वापस करिए. ठीक है? ये हमारा नॉर्मल पैटर्न है. अब इसको कुछ अलग करिए. ठीक है? नाउ कॉन्शियसली ध्यान से उल्टा करना, जो आपने किया उसका उल्टा करना. ओके? कंफ्यूजन होता है ना, सडनली अनकंफर्टेबल हो जाता है ना. एग्जैक्टली दिस इज व्हाट वी हैव टू डू. मैंने कहा था ब्रेन सबसे बड़ा हैकर होता है, वो एकदम कंफर्ट जोन में ले आता है हमें और उसके बाहर निकलने नहीं देता है. तो ये जब हम चेंज करते हैं कुछ, हमारा पैटर्न जो होता है हमारे बिहेवियर का, उसको जब हम चेंज करते हैं, जैसे हमें कोई आदत है, ठीक है, हम फॉर एग्जाम्पल समझो मैं एक एथलीट हूँ और मैं राइट फुट ही पहले रखती हूँ, तो मैं लेफ्ट फुट पहले. तो जो भी हम करते हैं नॉर्मली हैबिचुअली, उसे हमें चेंज करना है, वो पैटर्न को ब्रेक करना है. वो पैटर्न को ब्रेक किया तो ब्रेन बौखला जाता है, एम्बिग्विटी हो जाती है, कंफ्यूजन हो जाता है, अनकंफर्टेबल हो जाता है. एंड दैट इज द टाइम व्हेन यू गेट कंफर्टेबल. कभी लिखना है, हम अक्सर राइट हैंड से लिखते हैं, लेफ्ट हैंड से लिखना शुरू करिए. कुछ शब्द, कुछ वर्ड्स, कुछ सेंटेंसेस. ठीक है? सो टू गिव द ब्रेन अ लिटिल जर्क, and the brain will be all ready to learn new things, and that is the way you will channelize your energy. All right? Social connect. अब सोशल कनेक्ट कितना जरूरी है. पैंडेमिक ने कितना अच्छा सिखा दिया है ना हमें, घर बैठा दिया है, ना बाहर निकलना है ना कुछ, राइट? एंड दैट इज कॉजिंग अ लॉट ऑफ फ्रस्ट्रेशन इन पीपल. We all have seen that, isn't it? So man, or rather human being, is a social animal, my dear friends, isn't it? We all will agree to that. हम कितने परेशान हो गए, बाहर तड़प रहे हैं बाहर निकलने को, isn't it? So ये जो कनेक्ट होता है, ये हमें exchange of energies, exchange of pleasantries, मतलब गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, हाउ यू डूइंग, एक कॉल कर लिया. अगर मैंने युक्ति जी से कॉल कर लिया कि वाओ हाय युक्ति, हाउ यू डूइंग, हाउ इज एवरीथिंग एट होम, एंड देन कुछ और थोड़ी सी चिट चैट की, युक्ति विल फील सो गुड. और एनी ऑफ माय अदर गुड फ्रेंड्स, अंजना है, ये है, वो है, जो भी है, वो उनको कितना अच्छा लगा कि इसने मुझे याद किया. हाउ मच डू वी डू दैट? व्हाट्सएप है, बस मैसेज भेज दिया. बट व्हेन दैट पर्सनल कनेक्ट हैपेंस,
It is so amazing. You feel so good, isn't it? सिर्फ वो हाय हेलो करके छोड़ नहीं देना है, उससे बियॉन्ड जाओ. क्या हुआ, अरे क्या चल रहा है, अच्छा कैसे किया तुमने, अच्छा ये बताओ ना, अच्छा मुझे वो, you know, a little more. When you connect little more, go beyond that, forming that rapport with the person. Doesn't it feel amazing? फॉर एग्जाम्पल एक हम अब कुछ खरीदने जाते हैं शॉप में, ठीक है, हमने समझो फॉर एग्जाम्पल दूर क्यों जाए, हम मेडिकल शॉप पे ज्यादा आने जाना होता है. सो वहां पे हम गए, हमने प्रिस्क्रिप्शन दिया, एक बंदे ने प्रिस्क्रिप्शन दिया, मेडिसिन दिया, खत्म. और वही स्टोर में दूसरे कस्टमर को एक दूसरे एम्प्लॉय ने मेरा प्रिस्क्रिप्शन दिया और उसके पहले मुझे गुड मॉर्निंग मैम, हाउ आर यू डूइंग, घर पे आई होप आपके घर पे सब ठीक है. और वो जानता है कि मैं शायद अपने हस्बैंड के साथ जाती हूँ या मेरे बच्चे के, तो मुझे यहाँ आज आपका बेटा नहीं आया, राइट. सो इससे क्या हो जाता है, जस्ट थोड़ा सा दैट कनेक्ट एंड इट मेक्स यू फील सो अमेजिंग, इजंट इट. सो कभी पीछे नहीं चूकना है माय डियर फ्रेंड्स, ओके, बिल्कुल पीछे चूकना नहीं है, पूछो, गेट गोइंग, ओके, and that is what will get us further ahead, okay. And last but not the least, I'm sure you would have got an amazing plethora of techniques, and I'm sure it would have helped you, apart from the technical glitch in the beginning. But otherwise, I think you guys were rocking. You guys were an amazing audience. And now, before we wind up, I want you to have a quick check now. अब आपको कैसी दिख रही है, अब आपको ये मूविंग दिख रही है, you know, so, I'm sure it would be absolutely still and not moving at all. For me, it is absolutely calm now, isn't it? So this will get you an awareness that how we can all deal with the stressors with our just a little change in whatever we do. And the choice is always ours, okay? Our reality is the choice that we have, and how we can really make our life so wonderful. Life is beautiful, दोस्तों, बहुत ही बढ़िया है जिंदगी, और ये जिंदगी ना मिलेगी दोबारा. So let's live it. Remember my words. जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, और हमें जिंदगी काटनी नहीं है, जिंदगी जीनी है, okay? Wonderful. Thank you so much. That brings me to the end of my session. You were a wonderful audience. And last but not the least, I want to cater, Yukti, can you give me just few seconds more? I want to cater to Swati's question. Is that okay? Yeah, thank you so much. So, okay, while I stop sharing, स्वाति जी, yes, अक्सर ऐसा होता है कि हमें ऐसे लगता है कि हमने ध्यान नहीं रखा या किसी ने हमारा ध्यान नहीं रखा और हमें ये सब हो रहा है. So you can start doing it right now, ठीक है. अब वो हमारे कंट्रोल में नहीं था, वो हो चुका है, ठीक है, हम उसका कुछ नहीं कर सकते अभी ना. So why waste? देखो, एक ये जो लाइफ है ये एक रिवर की तरह है, जो पानी बह गया वो वापस नहीं आने वाला है, राइट. और जो पानी आया नहीं है हमारे पास, पता नहीं वो आएगा कि नहीं. अगर बीच में कोई बोल्डर या कोई रॉक आ गया तो वो शायद हमारे पास नहीं आएगा, वो डाइवर्जन लेके और कहीं चला जाएगा. सो सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है, जो हमारे पास, जो मेरे सामने पानी बह रहा है, मैं वही मेरी सच्चाई है, वही उसी पानी को मैं यूज कर सकती हूँ पीने के लिए, whatever, राइट. सो जो आपके पास है, जो प्रेजेंट है, प्रेजेंट मोमेंट को प्रेजेंट क्यों कहते हैं? बिकॉज वो एक गिफ्ट है, गिफ्ट को प्रेजेंट कहते हैं ना. सो प्रेजेंट मोमेंट को है, उसे नहीं खोना है, बिकॉज इट्स अ प्रेजेंट गिवन टू अस बाय गॉड, बाय द डिवाइन. सो उसे नहीं खोना है. फ्यूचर इज अनसर्टेन, पास्ट वापस आने वाला नहीं है, रिवर्स कैन नॉट गो रिवर्स, ओके. सो टेक केयर एंड एंजॉय योर प्रेजेंट, डोंट वेस्ट योर प्रेजेंट, राइट. थैंक यू सो मच. थैंक यू रशीदा जी, थैंक यू. Yes, thank you so much, the wonderful audience, and over to you, Yukti. Thank you, Sukhmeet. It was a very, very profound session. बहुत संभल के आपने हिंदी का यूज किया है, ये हिंदी सेशन है, but you will see another flow that Sukhmeet will create at 7 o'clock. If you found this session to be useful, please reach out to your friends and your network and ask them to benefit from her next session that happens from 7 to 8. It will be in English. And she will again be touching upon this topic for those who've missed out. The last opportunity for anyone to leverage on her expertise and look at mental wellness. With that, I want to thank you all for being here and quickly make a mention of panel discussion, guys. We have managing directors and CEOs coming from great places to work as panelists. I'm going to quickly share our panel with you. We have Shamal Vallabh ji, who's a sports scientist
and high performance coach Sandeep Gambhir, who is the managing director of Oryx Leasing, Manish Jaiswal, CEO and managing director at Magma. These are companies that have been great places to work year after year. Every single year they get voted as the greatest to work. We need to learn from them. What is it that they are doing with their people? What is it that they're doing right? Even in the virtual space, they are engaged with their people. How? What is it that we can do with our teams once we learn from them? And Swapnil Kothari, who's the president of CFPP and managing partner of S. Kothari and Company. So please join us. The link is there in the same Wellness Camp page where you click to join these sessions. It's called panel discussion on 26th, 10 in the morning till 11:30 in the morning. While you block your calendar for that, tomorrow is a day of financial wellness. We're going to talk about where to invest, why to invest, when to invest, and all these critical questions that we have in mind to be answered by the best from the industry, financial advisors. So please be there for our sessions lined up from 7 in the morning to 7 in the evening once again, and get everyone else that you care for to this wellness camp. Thank you for your support. Thank you for embracing our effort. Means a lot to me at SBY Academy and to all our sponsors and partners. Thank you. God bless you all. Please take care. Thank you so much, Yukti. Heartfelt gratitude to you for all the efforts and for such a lovely initiative. Thank you so much for having me here too. Thank you. Looking forward to your next session. See you. Bye. Bye.